हरियाणा और हिमाचल की सीमा के साथ लगे गांव रामपुर गेंदा में शिवालिक पहाड़ियों के नजदीक 28 एकड़ में बौद्ध मठ का निर्माण होने जा रहा है। इसका शिलान्यास थाईलैंड से आए बौद्ध भिक्षु अझन जयसरो मैथरो और अझन केवली मैथरो ने किया। ये मठ 28 एकड़ भूमि पर बनेगा। देश के ही नहीं बल्कि विदेश के बौद्ध धर्म से जुड़े भिक्षु यहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। वहीं भविष्य में बनने वाले इस कल्याण मित्र मठ से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। Mitra House is that communities thrive when we give attention both to material and spiritual goals. And these days, I think we are too much focused on the material goals. And so having a spiritual community like a monastery close by provides inspiration and education for people to be able to incorporate the spiritual goals into their life and lead a more balanced and healthy and happy life. Okay, so is this the first such initiative here or in India? This is the first initiative from monks based in Thailand who have been trained in Thailand. So now we have a growing number of Indian bhikkhus who are training in the forest monasteries of northeast Thailand, and we hope that in the future there will be local Buddhists and people from Buddhists from around India who will come here and be interested in taking on the monastic training and being able to propagate Buddhist values and peace and kindness and wisdom throughout the country. So Ajahn, why of all the places in India, such a huge country, why did you choose this particular place for this initiative? Yeah, so you're asking the wrong person. I'm here offering moral support. The person who's really the guiding force here is Ajahn Kewali, so maybe you would like to answer that question. It usually consists of one area which is specifically for the monks in training, and then a public area which may include accommodation for lay Buddhists. And so Buddhists from local area or from other parts of India or from other parts of the world may in future come here to be able to participate in the life of the monastery and to learn about Buddhism and Buddhist meditation. So it may well be in the future that there will be more pilgrims coming to this area, and this area becoming more well known throughout the Buddhist world. So is there, do you propose to similarly establish monasteries in other places in Haryana as well? Our style is to go step by step, very slowly, and create strong foundations. There's no hurry. And we're not into empire building and wanting to grow so quickly, because that's not stable and not sustainable. We start off something small, and when something is a good model, then maybe we can expand. But it depends upon the wishes of the people. Do they want something like this or not? We're not impose on somebody. We're saying, this is a beautiful thing. Are you interested? Would you like to have something like this close to your village? Maybe yes, maybe no. आचार्य जी ने बताई ना, वो ये है कि जिस तरह से ये जो वन्य परंपरा है भिक्षुओं की, उसका मकसद ये नहीं है कि किसी विशेष धर्म को या संप्रदाय को फैलाना। उसका मकसद तो ये है कि हमारे पास एक ऐसी शिक्षा उपलब्ध है भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई, जिससे कि हमारा मन शुद्ध हो सकता है। तो एक तरीके से आचार्य जी बता रहे हैं कि ये एक शिक्षा प्रणाली है, इसको एक शिक्षा प्रणाली की तरह देखा जाए। तो ये शिक्षा प्रणाली उपलब्ध है। जो लोग चाहते हैं कि भाई हम भी अपने मन को शांत करें, उसको शुद्ध करें, वो शिक्षा प्रणाली को अपनाएंगे तो अपना मन शांत हो जाएगा। उसमें ये बिल्कुल कोई बात नहीं है कि हम अब फलाना थे और उससे ढिमकाना बन गए हैं। जो परिवर्तन होना है वो चित्त का परिवर्तन होना है, ना कि किसी भी एक लेबल का कि मैं ये था मैं वो हो गया हूँ। तो ये बिल्कुल ये इंटेंशन नहीं है, बल्कि इस तरह से जो शिक्षा है उसको एक थोड़ा सा ये भी ब्रीफ कर दीजिए कि ये कितने एरिया में बनेगा और क्या क्या विशेषताएं रहेंगी और
कितना खर्च होगा, कब तक बन जाएगा? तो जैसे आचार्य जी ने बताया कि इस परंपरा में ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो जो लोकल लोग हैं, जो समुदाय है, उसके इच्छा अनुसार, उसकी इंटरेस्ट के अनुसार होता है। तो ये इस बात पे निर्भर करता है कि किस तरह से जो यहाँ सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध हैं उसमें जितनी दिलचस्पी होगी, उसमें जिस तरह से जो लोकल लोग हैं वो शामिल होंगे, उसके अनुसार ये चीज़ आगे बढ़ती चलेगी। फ़िलहाल क्यों चुना गया इसको? हाँ, इस पे भी आचार्य जी ने बताया कि एक कारण तो भाई ये है कि जैसा कि उन्होंने पहले भी बताया कि ये सारी धरती जो है ये ऐतिहासिक समय से ही यहाँ पे मठ, विहार और आश्रम रहे हैं सन्यासियों के लिए, और पुरातत्व विभाग ने भी जो खुदाई किया उसमें इसी तरह के वो निकल के आए हैं। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि भाई हम फिर से उसी पावन धरती पर रहें जहाँ कई 100 साल पहले भी इसी तरीके से सन्यासी और भिक्षु रहते आए हैं। तो मुख्य कारण तो यही है। कितने साल बाद ये मठ बनाया जाएगा दोबारा से? तो आचार्य जी ने इसका जवाब ये दिया कि हमारे जो मठ हैं, जो आश्रम हैं, वो एक क्रमबद्ध तरीके से बनते हैं। तो शुरू में एक छोटी सी जगह होगी जहाँ पे कि जो लोग आना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, वो आके रह सकें, कुछ भिक्षु रह सकें। फिर यदि और इंटरेस्ट हुआ तो जो रहने की जगहें होती हैं, भिक्षुओं की कुटियाँ अलग बनती हैं ताकि वो एकांत में रह सकें। और इसी तरह से अगर गृहस्थ आके रहना चाहें तो उनके लिए भी धीरे धीरे आवासों का निर्माण किया जाएगा। इस तरह का मठ ओवरऑल इंडिया में कितने बनाए जाएंगे? हाँ, कितने होंगे या ओवरऑल जो बनाए जाएंगे जी में है? तो आचार्य जी ने ये कहा कि हम इस परंपरा में हम कभी इस तरीके से नहीं सोचते हैं कि हमें कोई साम्राज्य बढ़ाना है या साम्राज्य स्थापित करना है, बल्कि ये सोचते हैं कि भाई एक बहुत बहुमूल्य शिक्षा उपलब्ध है। जहाँ जहाँ दिलचस्पी रहेगी और आमंत्रण दिया जाएगा, भिक्षुओं को बुलाया जाएगा, वहाँ वहाँ भिक्षु जाएंगे। यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया, ये जो आरण्य विहार ट्रस्ट है, जो दिल्ली का ग्रुप है, उसने उनको न्योता दिया कि भाई आप यहाँ आइए, जगह अच्छी है, लोग बहुत मिलनसार हैं। तो हमें लगा कि चलिए ठीक है, ये अच्छी जगह है। तो इस तरह से जो भिक्षु होते हैं वो केवल अगर उनको आमंत्रण मिलता है तो उसी के जवाब में कहीं जाते हैं, ना कि खुद सोच के कि मैं यहाँ जाऊँगा और मैं वहाँ जाऊँगा और अपना साम्राज्य फैलाएंगे। मेरा क्वेश्चन ये था कि इस तरह का जो मठ है इंडिया में और कितने हैं या विश्व में कितने हैं? विश्व में ये जो परंपरा है उसके अलग अलग, जैसे यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में कुल करीब 33-34 इस तरह के मठ हैं। और थाईलैंड में तो कई सारे मठ हैं, क्योंकि थाईलैंड से ये परंपरा एक तरह से शुरू तो हालांकि यहाँ से हुई और थाईलैंड में है, तो वहाँ कई 100 सालों से परंपरा है। तो वहाँ करीब 300-350 मठ इस परंपरा के हैं। और कई सारे जो विदेशी भिक्षु हैं वो थाईलैंड में गए और अजान चाह के से सीखे और फिर उन्होंने अपने अपने देशों में वो इस परंपरा विदेशी जो मूल रूप से यहाँ मठ स्थापित करने का तो ये मकसद है कि भाई अगर भारतीय मूल के लोग हैं जिनको दिलचस्पी है तो अपनी ही भाषा में वो यहाँ पे रह सकें, अपनी ही जो सांस्कृतिक स्थिति है उसी में रह सकें। और अगर इसी तरीके से विदेशी भिक्षु भी चाहते हैं आके भारतवर्ष में रहना, और ऐसे बहुत भिक्षु हैं, तो उनका भी स्वागत है यहाँ पे। देश के सभी राज्यों और शहरों को छोड़कर यमुनानगर में बन रहे इस बौद्ध मठ के बनने से आसपास के ग्रामीण काफी खुश हैं। आसपास के ग्रामीण इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। रामपुर गेंदा गांव की महिला निशा और रीना ने बताया कि बौद्ध मठ बनने से गांव की काया पूरी तरह से पलट जाएगी। जो ये बौद्ध धर्म के हैं, मतलब के भिक्षु, इन्होंने शुरुआत गेंदा रामपुर से शुरू की है। मतलब कि पहला गांव है जहाँ ये भिक्षु आए हैं। पहले सुना करते थे कि भिक्षु हैं, हमें तो कुछ पता नहीं था। इन्होंने सारे एरिया में मतलब कि गेंदा रामपुर चुना है। यहाँ पर पहले भिक्षु की वो की है, ये भिक्षा मांगने आते थे और ये जो भी भिक्षा लेते थे यहाँ पे, मतलब कि हमारे अन्न का कोई ना प्रयोग वैसे नहीं किया। और मान्यता की बौद्ध धर्म के हैं, मतलब कि जो अन्न लेते हैं इन्होंने बहुत गुणगान किया कि आपने बहुत अच्छा अन्न दिया है और भिक्षु मांगा है। हम तो ये खुशी हो रही है कि यहाँ के बौद्ध धर्म के जो मतलब कि यहाँ मंदिर बनेगा, बौद्ध धर्म को होगा, स्थापना होगी, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। इससे हमारे बच्चों को भी आगे संस्कार मिलेगा कि कैसे अच्छे कार्य करना चाहिए। हमें भी उम्मीद है कि आज हम खुद ऐसे अच्छे संस्कार देंगे तभी हमारे बच्चे को आगे अच्छे संस्कार मिलेंगे ना, आगे बढ़ेंगे। और बहुत अच्छा लगा है कि गेंदा रामपुर में आज पहली बार जो भिक्षु आए हैं, हमें प्रसन्नता हुई है कि बौद्ध का उन्होंने स्थापना की है, ऐसा हमें अच्छा लगा है।
हम रामपुर से ही रहने वाले हैं, यहीं के लोकली, और हमें बहुत फ़ायदा है मतलब इसका, और हमें बहुत सारी खुशी भी है क्योंकि इस गांव में इतना बड़ा धर्म का काम हो रहा है इस मिट्टी में। और मतलब ऐसा है कि हम खुशी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता, क्योंकि ये हमारा एक सपना होता है भी हम भी यहाँ से बाहरली कंट्री जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर बाहर से अंग्रेज आए, उन्होंने भी बोला क्योंकि हमारा पहला प्यार भारत है, तो अब हमारी खुशी मतलब बाहर जाने का तो हमारा कोई मन नहीं है, क्योंकि हमें इतनी खुशी, क्योंकि बाहर की कंट्री वाले भी आके हमारे भारत में ही कह रहे माई लव इंडिया। तो बस हम इतना ही कहना चाहें भी अब हमारा बाहर जाने का कोई सपना नहीं, क्योंकि हमारे अंदर यही खुशी है कि हमारे इतने बैकवर्ड एरिया था पहाड़ों में, यहाँ पर कभी इतनी उम्मीद नहीं थी। जो भी आप भी इस धर्म के बारे में जानना चाहेंगे? हाँ जी जानेंगे, अब तो धीरे धीरे मतलब शुरुआत हो रही, तो धीरे धीरे जानेंगे, तो फिर बस। तो क्या कारोबार बढ़ने की संभावना है यहाँ पर? हाँ है, संभावना है, क्योंकि जैसे कि धीरे धीरे अभी तो यहाँ पर आए थे, ये सारा जंगलात था, अब धीरे धीरे एक सर हो गया, अरे मकान भी बनेंगे, फैक्ट्री वगैरह सब बनेंगे, इस गांव की तो बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी यहाँ पर, बस इससे आगे नहीं। थाईलैंड से आए भिक्षुओं ने इसका शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि जल्द ही ये मठ बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि इसके निर्माण में करोड़ों रुपए का खर्च आएगा। बड़ी बात यह है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं उन्हें विदेश नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि यमुनानगर में बन रहे इस मठ में आकर वे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट।